million to the screen. So my name is Dr. Shubha and I'm here to talk about play and connect today. This workshop is actually a sequel to our previous workshop, which was about brain and body disconnect, whereby we discussed how the neurotypical brain works different than the autistic brain, and how there is a constant kind of disconnect going on between the autistic brain and the neurotypical and their body. तो जब लास्ट में हमने लर्न कर लिया about the disconnect, now in this workshop we are going to learn how we are going to connect with our children. So I know you have attended the previous workshop because it would be fairly easy for you to relate to the topic more. So Fiza, we can start. I'm just playing the screen. Voice is not clear. The presentation today is about play and connect. The reason why I chose this topic today, as I mentioned earlier, is because we were having a series of workshops, and the first one being the understanding of how an autistic brain works, and that there is a disconnect between their brain and their body. जिसकी वजह से their behaviors are why they are. जब बच्चे को जो भी कर रहे होते हैं, the reason behind their behaviors is actually that disconnect, which is differentiating between their actions and their thoughts. तो आज की जो workshop है, ये this is going to help you connect with them when they are not connected. So we'll move forward to the first slide. अच्छा, इसमें pictures to use हुई है मीडिया पे. इसमें कुछ pictures मैंने अपनी बेटी की हैं, इस वजह से मैंने statement दिया कि kindly do not share these pictures with anybody else without my permission. Okay. Fiza, I want to later. Just leave them there. Okay, so beginning our presentation, I would want to ask you this question. Why do you think connection is important with your children? Since many of you are participating on Zoom, you can even type it down in the chat window if you want to. But for the people who are present here, can anyone tell me why do you want your child to connect? What is the purpose behind connection? The relationship between the parents and The relationship between the parent and the child. the direct communication link for Better communication. For better communication. Better adaptability. Okay. These are all fairly true answers. Now, so what is our demand or what is our need for the connection? The need for a connection that child is either do we want him to follow our instructions or what else? Something needs to be in the slides because there's a lag. Or you want to bond with your child and share that moment of joy with your child. Like you're following instructions, so it's very simple. I'm here and I'm talking to all new people, but I don't share a bond with you. Right? I'm just here, I'm talking to you, you are listening. मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मेरे servants हैं, मेरे घर पे लोग मेहमान आ रहे हैं, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ, communicate उनसे भी कर रही हूँ. But I do not share that bond with them. My main aim of connection with my child is to have that bond with my child. ऐसा bond जिसमें कि मेरा और उसका एक trust का relationship हो. एक ऐसा bond जिसमें मैं और मेरा बच्चा communicate कर सके एक दूसरे के साथ. उस time पे when we are not able to actually say anything. That is the kind of connection that we want for our children. Because especially autism में you all know communication is a big problem. हमारे बच्चे communicate नहीं कर सकते. तो इन बच्चों में for able to understand them better, we should have that connection. And that is why it is so very crucial. Next slide please. अब connection के लिए your attitude is very important. How do you want your attitude to be like? There are two prerequisites for that. The first one is acceptance and the second one is positive or growth mindset. Okay? अब सबसे पहले हम acceptance की बात करते हैं. आपको पता है कि हम हर साल
4th अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी मनाते हैं और सारा साल हम बहुत सारी बातें भी करते हैं अबाउट ऑटिज्म के, इसके फीचर्स क्या हैं, बच्चे किन किन चैलेंजेस का शिकार होते हैं। लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस। अनलेस यू डू नॉट एक्सेप्ट योर चाइल्ड विद ऑटिज्म टू बी लाइक ही इज, तब तक आप उसको हेल्प नहीं कर सकते। फिर आपका बच्चा जो है, आप जैसे आपको पता चलता है कि उसका डायग्नोसिस हो गया है और ऑटिज्म का एक लेबल लग गया उसके ऊपर, तो उसके बाद वो बच्चा आपके लिए बिल्कुल बदल जाता है। आप सर तो कोशिश शुरू कर देते हैं कि बस हम इसकी किसी न किसी तरह इसको ठीक करें, शायद इसको कोई बीमारी कहाँ हो गई है जिसका हमें इलाज करना है या जिसको हमें ठीक करना है। सो द फर्स्ट स्टेप टू एक्सेप्टेंस इज दैट यू लव योर चाइल्ड द वे ही और शी इज। उसके अंदर जो भी आपको डिफरेंसेस नज़र आते हैं, जो भी उसकी खूबियाँ हैं, जो उसकी खामियाँ हैं आपके नज़र, उन सब के साथ आप उसको कबूल करते हैं, उन सब के साथ आप उसको प्यार करते हैं और आपका बच्चा पहले है और ऑटिज्म उसको बाद में। सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू चेक ऑन योरसेल्फ। मैनी अ टाइम्स मैं खुद भी इस प्रोसेस में से बहुत अरसे तक गुजर चुकी हूँ, जब मुझे मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का बड़ा मकसद यही था कि मेरा बेटा ठीक हो। अब ठीक हो जाए, वो बीमार तो नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ही इज ऑटिस्टिक एंड द वे ही लुक्स एट द वर्ल्ड इज डिफरेंट एंड दैट इज हाउ ही इज। अगर मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या मेरा किसी काम करने का एक तरीका है तो वो मेरा एक तरीका है, दैट्स हू आई एम। अगर मुझे कोई चेंज करने का चाहेगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो उस बंदे से बल्कि दूर रहूँगी कि ये मुझे चेंज करना चाह रहा है। सो इसी तरह से आपके जो बच्चे हैं, यू शुड लव देम द वे दे आर फॉर हू दे आर। उसके बाद आपके बच्चे डिफरेंट हैं बट दे आर नॉट लेसर देन अदर्स, ठीक है। देयर वे टू लुक एट द वर्ल्ड इज डिफरेंट, देयर वे टू लर्न इज डिफरेंट, their way to communicate and interact with the environment is different, लेकिन वो किसी से कम नहीं है। और मेरा कहता है कि हाँ, मुझे कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे ऐसे बहुत रिनाउंड लोग हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के ऊपर हैं, दे लाइक क्रिएटेड वंडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। The diagnosis does not define the individual they are। जैसे मैंने पहले बात की इसके ऊपर कि डायग्नोसिस के बाद आपका बच्चा चेंज नहीं हो जाएगा, उसकी जगह कोई एक नई स्पीसीज नहीं आ जाएगी आपके घर में, आपका बच्चा वही रहेगा उसके डायग्नोसिस के साथ। बल्कि आपको इस चीज़ का एक रिलीफ मिलना चाहिए कि अब आपको पता चल गया कि उसका जो डिफरेंस है, जो उसका दूसरे लोगों से अलग एक तरीका है, वो क्यों है। यू फाउंड आउट द रीज़न बिहाइंड दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब को आपने एक्सेप्ट करना है, इन सब को आपने एडमिट करना है, इन सब को साथ लेके चलना है। एक दफ़ा जब आप किसी चीज़ के साथ एक पीस कर लेते हैं, फिर उस सिचुएशन को आप हैंडल ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अनलेस कि आप वरीड हों, स्ट्रेस्ड आउट हों, आप कंफ्यूज हों कि मैं अपने बच्चे के साथ क्या करूँ, मैं इसको ठीक करूँ, तो आप एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पे भागते रहेंगे और आप खुद से इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे कि आप खुद कैसे अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। हालांकि जो सबसे बेस्ट टीचर और थेरेपिस्ट अपने बच्चे के लिए वो पेरेंट्स होते हैं। एक सेकंड। दूसरी चीज़ है माइंडसेट। माइंडसेट इज वेरी इम्पोर्टेंट। आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यू शुड बी ओपन टू लर्निंग। अगर आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं किसी सेंटर में, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं जो कि उसको डायग्नोसिस करता है, फिर आपको बताते हैं कि ये आप करना है, आप उसको बिहेवियर थेरेपी कराएं, आप उसको OT में लेके जाएँ, उसको स्पीच थेरेपी कराएं, और ये एक सेट ऑफ टेक्निक्स है जो आपने करना है। तो आपने अपने आप को वहाँ पे रोकना नहीं है। Even though all these things play a huge role in development of your child, but that is not the end of the world. There is a lot more to this. There is lot more beyond this. अपने आप को, अपने जहन को खुला रखें, अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें, उसकी नीड्स को, उसकी लाइक्स को, उसकी डिसलाइक्स को, उसकी वॉइस को, उसकी डिज़ायर्स को, उसके शौक को, हर चीज़ को देखें। आप देखें कि आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहा है। आप ये देखें कि आपका बच्चा, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उन प्रेफरेंसेस को लेके उसका जो चीज़ों को लर्न करने का तरीका है उसके साथ आप मिक्स करें, उनको ब्लेंड करें, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे की ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है। ABA, speech, all these things they do help, but you should be always open to learn about other ways to connect to your child. दूसरा है
स्टेइंग पॉजिटिव। देखें, आपके बच्चे को अगर ऑटिज्म डायग्नोज हो गया है तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। यू शुड बी देयर विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि आपके पास अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है, ये बच्चा दिए, और आपने इसके साथ आगे बढ़ते रहना है। आपने अपने बच्चे को हमेशा इस तरह से देखना है कि ये काम अभी नहीं कर सकता लेकिन ये कर लेगा। जैसे एक बहुत छोटी सी मिसाल है, एक बड़ी आम टर्मिनोलॉजी जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल करके हमने उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि ये तो बोल ही नहीं सकता। और पहली बात है कि नॉन वर्बल का मतलब ये है कि उसके पास वर्ड्स ही नहीं है, और ये भी गलत टर्मिनोलॉजी है। वर्ड्स उसके पास हैं, उसके दिमाग में, जैसे कि आप प्रीवियस वर्कशॉप से अगर आपको याद होगा कि उनके दिमाग में वो लैंग्वेज को प्रोसेस वैसे ही करते हैं जैसे कि हम प्रोसेस करते हैं। But the problem is at the level of communication, at the level of speech, they cannot take it out. So non-verbal के बजाय जो बेहतर या more respectful terminology is non-speaking. और उसमें भी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा नहीं बोल सकता, आप ये कहेंगे कि ये अभी नहीं बोलता, means he has not spoken yet. इस तरह से करके आप अपने आप को भी और अपने बच्चे को भी एक स्पेस देते हैं to try, to work harder, and the belief that your child will communicate. चाइल्ड विल स्पीक, चाइल्ड विल टॉक। उसमें अपने आप को इस तरह से स्टॉप मत किया करें, हमेशा पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चला करें। अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल आप उसको कोई काम सिखाना चाह रहे हैं जो कि वो नहीं सीख रहा, तो एक स्टेप पीछे लें, उस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में जब आप ब्रेक करके करते हैं तो आप इस चीज़ के ऊपर होंगे इसने ये पहला स्टेप कर लिया, पहला कदम बढ़ा लिया, ठीक है। वो उस तरह का माइंड सेट लेके आप चलना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर तारी कर लेंगे और कहेंगे कि मेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता, तो फिर आप आगे बढ़ने की भी कोशिश नहीं करते, फिर आप नए तरीकों को सर्च भी नहीं करते, आप नई जगह पे जाते भी नहीं और आप बस उसके हाल को छोड़ देते और कहते हैं कि बस मुझसे नहीं। सो दिस इज अ माइंड सेट दैट यू ऑल हैव टू कीप कमिंग बैक टू। हम सब इंसान हैं, वी ऑल गो थ्रू दैट टाइम पीरियड जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब हम बहुत थक जाते हैं या बहुत डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि अल्लाह मैं थक गया हूँ और जीऊँ, कोई बात नहीं, अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर पैदा किया, लेकिन जिस तरह से ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान का नाम है, इसी तरह पॉजिटिव माइंडसेट इसको एग्जैक्टली इसी तरह से इस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं। आप कमज़ोर होते हैं, परेशान होते हैं, आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं और आप फिर उठते हैं और फिर उस पॉजिटिविटी के साथ जो है वो काम करना शुरू करते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू नीड टू कीप व्हाइल यू आर वर्किंग विद योर चिल्ड्रन। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं रोल ऑफ प्ले की तरफ। रोल ऑफ प्ले जो है, प्ले इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्ले के साथ जितना हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अपने बच्चों को, अपने आप को, और जितना ज़्यादा इन डेप्थ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वो हम वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अभी भी ये होता है कि अगर मैं अपने बेटे के साथ बैठ के कोई एकेडमिक्स का काम कर रही हूँ तो मुझे साफ पता चल रहा होता है कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा होता है और मैं भी कितनी स्ट्रगल कर रही होती हूँ। लेकिन जैसे ही हम प्ले के ऊपर आते हैं, एक्टिविटीज़ के ऊपर आते हैं, गेम्स के ऊपर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों में चमक वापस आती है। और उसमें जो हमारी एक जॉइंट हमारी एक्टिविटी होती है, एक हमारा एक बॉन्ड होता है, एक हमारी शेयर्ड एनर्जी होती है, उससे जो लर्निंग उसकी हो रही होती है वो नज़र आ रही होती है कि वो उसको कितना कॉन्फिडेंस देती है, वो कितना उसको इंडिपेंडेंस में मदद देती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्ले का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप गेम्स खेलें, सिर्फ ये नहीं कि आप एक्टिविटीज़ खेलें। प्ले इज़ अ लॉट मोर डाइवर्स देन दैट, इट हैज़ अ लॉट मोर डिटेल इन दैट। तो आपके नज़दीक प्ले का क्या कॉन्सेप्ट है, प्ले का क्या मतलब है, तो मुझे बताना चाहेंगे। हर एक्टिविटी को प्लेफुल कर देना। इवन किड इज टेकिंग बाथ तो उसको वो भी पानी और स्प्लैश कर रहे हैं, बॉल डाल दें, ठीक है, टॉयज आ जाएंगे तो फिजिकल प्ले की फॉर्म हो जाती है, लेकिन लाइक आई एम स्प्लैशिंग वाटर ऑन यू, इस तरह की चीज़ें, बबल्स इन वाटर, जब जो भी है किचन में हम प्याज टमाटर के साथ प्ले कर लेते हैं, बिल्कुल के ले और फिर से वो ये रख दो रख दो। That's very good. That's like an absolute generalization of play, which is very good. और आप लोग के काम में क्या है, when you're working with your children, आप लोग जो थेरेपिस्ट हैं तो आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपके नज़दीक प्ले क्या, what is play? वर्ड्स की स्पीकिंग खुदा खुद आती है, ये कारण से जो गाने साथ देख रहे हैं उसकी मूविंग मोटर स्किल्स के साथ
इंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है और आपको क्या लगता है कि जब आप उसके साथ एक स्ट्रक्चर्ड सेशन ले रहे होते हैं उसमें उसकी लर्निंग ज़्यादा एंगेज होती है या प्ले के दौरान ज़्यादा एंगेज? प्ले के दौरान बच्चा ज़्यादा ज़रा वो अटेंशन दे रहा होगा, उसमें कुछ डिफरेंट होता है। एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल में उसको पता है कि जाऊँगा सेशन लूँगा, तो अगले दिन कुछ न्यू ऐड उसमें करो तो बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है कि अच्छा आज कुछ डिफरेंट है और इससे मे बी वो ज़्यादा सीख रहा है। एब्सोल्युटली राइट। प्ले का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यू मीट द चाइल्ड वेयर ही इज एट, और प्ले की कोई बाउंड्री नहीं होती। मतलब जैसे होता है ना कि अब अक्सर हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो बड़े हैं उनके साथ एज अप्रोप्रिएट काम करना चाहिए आपको, लेकिन प्ले की खूबसूरती ये है कि आप जहाँ भी हैं, आप जिस भी चीज़ के अंदर चाहें आप प्ले को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चाहे कोई भी एज लेवल हो, और हर एज लेवल पे बच्चे इंजॉय करते हैं। वो प्ले अगर मीनिंगफुल है, वो प्ले अगर उनके लिए मोटिवेटिंग है, अगर वो प्ले जो है वो उनके लिए फुल ऑफ लर्निंग है, वो हर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे, they're going to absorb it way more quicker than they're sitting on a table and chair and doing a lesson. So this is like you meeting the child when the child is at. दूसरी चीज़ ये कि you develop flexibility when you do it. जैसे आपने कहा कि आप प्ले कर रहे होते हैं, उसके अंदर नई चीज़ें आ जाती हैं, नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, और प्ले में होता है कि आप गलती करते हैं लेकिन उसको प्लेफुली आप एक्सेप्ट भी करते हैं, फिर आप दोबारा करते हैं, तो यू आर मॉडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द चाइल्ड, जो कि आपको पता है कि ऑटिज्म में इज लाइक वेरी वेरी हार्ड टू डेवलप दैट फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन व्हेन यू आर मॉडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग प्ले, तो आप ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपने बच्चे को कि वी कैन बी फ्लेक्सिबल, चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से भी हो सकती हैं। अगर आज मैं एक गाड़ी के साथ खेल रहा हूँ तो कल मैं दूसरे रंग की गाड़ी के साथ भी खेल सकता हूँ। अगर आज मैं एक तरह के टेंट में बैठ रहा हूँ या एक बुक पढ़ रहा हूँ तो कल मैं किसी और बुक के साथ जो है वो प्रिटेंड प्ले करके, या बुक के जैसे आप एक स्टोरी परफॉर्मेंस करते हैं, प्रिटेंड प्ले ज़रा छोटे बच्चों का होता है, लेकिन बड़े बच्चों में आप स्टोरी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो वो मैं डिफरेंट बुक्स के साथ भी कर सकता हूँ। सो यू आर एक्चुअली डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी विद द चाइल्ड। तीसरी चीज़ ये है कि यू आर इन द मोमेंट। ठीक है, जब आप सेशन हो रहा होता है, बच्चा कहीं होता है, वो आपको नहीं पता कि आप पढ़ा रहे हैं, वो अपने जहन में कहीं और पहुंचा होता है, लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग यू आर इन द मोमेंट, यू आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड व्हेन यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट, दैट इज व्हेन यू गेट दैट जॉइंट अटेंशन, दैट इज व्हेन यू गेट दैट कनेक्शन दैट यू yearly want from your child. So you're in the moment and that is how you develop that connection. That is how you develop that bond. क्योंकि कनेक्शन सिर्फ पेरेंट्स का बच्चों का नहीं होता, कनेक्शन टीचर्स का, स्टूडेंट्स का भी होता है, थेरेपिस्ट का और उसका जो बच्चा है जिसके साथ वो थेरेपी कर रहा है उसका भी होता है, जिसको आम जुबान में हम रैपो कहते हैं। लेकिन रैपो इज अ वेरी टेक्निकल टर्म, डज नॉट ब्रिंग एनी जॉय एनी वार्मथ। इन कनेक्शन इज समथिंग दैट यू नो एक बॉन्ड आप करते हैं उस बच्चे के साथ, और बच्चा जो है ही एक्चुअली लुक्स अप टू यू। So that is the importance of play. Next slide, please. Okay. Could you take this pause, please? Stages of play कौन कौन सी हैं? आपको पता है? आपको पता है? Stages of play कौन सी हैं? Can you tell me? आपको नहीं, आपके पीछे जो आप भी बता सकते हैं, लेकिन आपसे पूछो। Do you know? It's all right, कोई बात नहीं, आपको पता है। Anybody who knows stages of play? टेक्निकल टर्म में नहीं पता वैसे। ठीक है। So The child can be playing independently. Give him toys and he's playing independently, maybe cars or maybe something. हाँ जी। But there may be a second stage could be when there are 2 or 3 people or 2 or 3 children playing together. हाँ, that is a progression. And another stage could be mother and parents and sister and brothers playing together. Right. Another stage could be friends playing together outside the house, inside the house. That's a different stage. Although I mean this is all true, but these are not actually the stages of play. जो stages of play हैं ये develop होते हैं एक specific time period with age. And once we acquire them, once we develop them, then they stay for the rest of our life. So हमारे पास जो different stages of play हैं, I would like somebody to do it. It's the first stage is solitary play. Then the next is spectator play. The next, somebody would go on clicking, parallel play, associative play, cooperative play, and then is generalization. Basically ये technical terms हैं, लेकिन इनके नाम इतने easy हैं ना, they are suggestive of their meanings.
सो सबसे पहले जो है वो सॉलिटरी प्ले। अब सॉलिटरी प्ले जो है, दिस इज द स्टेज ऑफ प्ले दैट यू बोर्न विद, ठीक है। दिस इज, जैसे सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, अलोन। सो सॉलिटरी प्ले इज व्हेन द चाइल्ड इज प्लेइंग अलोन बाय हिमसेल्फ, बाय देमसेल्व्स। जैसे बेबीज होते हैं, उनका जो शुरू का टाइम पीरियड होता है जिसमें नॉन स्पेसिफिक प्ले होता है, लेकिन 1.5-2 महीने के बाद दे स्टार्ट प्लेइंग बाय देमसेल्व्स। उस टाइम पे जब वो स्माइल उनकी आनी शुरू होती है, तो ये स्टेज ऑफ प्ले उस वक्त उनकी डेवलप होती है, और ये बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक की स्टेज रहती है। मतलब बच्चा इस स्टेज में ही रहता है, सॉलिटरी प्ले की स्टेज में। अब जो टाइम लाइन्स मैं आपको बताऊंगी, दीज आर लाइक प्लस माइनस, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबिलिटी इन द चिल्ड्रन। लेकिन एक जो रफ एस्टिमेट है जिसको हम मैक्सिमम एज कहते हैं, रेंज एज की, फ्रॉम बर्थ टू 2 years is the stage of solitary play in which the child by default, by development plays alone, ठीक है। और ये जो है, this is the most common type of play in our kids on the spectrum, playing alone, ठीक है। And this is also the most important type of play for everyone, all human beings. जैसे मैंने आपसे कहा, जब मैं आपको स्टेजेस ऑफ प्ले के बारे में जैसे जैसे बताती जाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि ये डेवलप कैसे होती है, ऑटिज्म में कैसे नजर आती है, और हम एडल्ट्स जो हैं उनको कैसे अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी रिलेटेबल फॉर ऑल ऑफ यू। सो पहले 2 years में सॉलिटरी प्ले डेवलप हो गया। अब हमारे बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, जब वो स्टिम कर रहे होते हैं, जब वो कोई भी रिपेटिटिव बिहेवियर कर रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त वो सॉलिटरी प्ले पे। सॉलिटरी प्ले क्या होता है कि इट गिव्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल टू, आपकी मर्जी है, आपने अपने आप को रेगुलेट करना है। जैसे हम स्टिमिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म फॉर किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम। इसमें ये होता है कि जब बच्चे ओवरवेल्म होते हैं अपने एनवायरनमेंट से, चाहे वो सेंसरी स्टिमुलाई हो, चाहे मोटर हो, चाहे कोई भी हो, उन स्टिमुलाई से जब उनका ब्रेन बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाता है, तो उसके बाद दे गो इनटू दिस जोन ऑफ अलोननेस, जोन ऑफ स्टिमिंग, जिसमें वो अपना कोई भी रिपेटिटिव बिहेवियर है, चाहे वो हैंड ट्रैपिंग है, चाहे वो जंपिंग है, चाहे वो पेसिंग है, चाहे वो रॉकिंग है, चाहे वो लाइनिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो करना शुरू होता है। सो दिस इज देयर सॉलिटरी प्ले। और हम बड़े जो लोग हैं, हम इसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, कि फॉर एग्जाम्पल आप आज स्कूल से जब वापस जा रही हैं, सो यू आर वेरी टायर्ड, you had a rough day, बच्चों ने बहुत तंग किया। Now when you go home, what do you want to do? आप सोएंगे। अगर आप बस और कुछ करना हो सोने के अलावा, सॉरी, सेल फोन यूज करेंगे, आप क्या करेंगे? Thousand things to do. Anything that you want to do for yourself. Sometimes कि मुझे quiz करना, Reading a book. reading a book. Reading a book, yes. That is For me, that was. exactly. अब ये सोचो कि जब आप solitary play में होते हैं, imagine you are sleeping after a very very hard day. Somebody comes and wakes you up. And if you've done like the whole thing in the day, and finally you have 5 minutes to sit and read a book, and your child comes and rips off your book, what do you do? Imagine how important that solitary play is to us as adults, as typical individuals, that we need that solitary play to recharge our batteries, to regulate ourselves and prepare ourselves for the next day. ठीक है? अब इसको हम further autism के साथ relate कैसे करेंगे? We'll see in the later slides. Next slide. Okay, this is spectator play, the next stage of play. Spectator, the word tells you that you're watching. You're all spectators right now. You're watching me. ठीक है? Spectator play is a very important stage of play जो बच्चों में develop होती है by the age of 2-2.5 years of age. इस एज में, इससे पहले भी आ सकती है, but generally 2 to 2.5 years of age में develop होती है। बच्चे दूसरे लोगों को देखना शुरू करते हैं। They start observing other people. They start learning by observing. आपने एक से सुना होगा कि एक जब टॉडलर्स के लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है टेरिबल टूल्स। टेरिबल टूल्स हम कहते हैं कि ये तो बच्चा बंदर बन गया, जो हम करते हैं वो करता है, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ चला जाता है। यू सी, दैट इज व्हाट चिल्ड्रन डू एट दैट टाइम। इट इज देयर एज टू लुक एट अदर पीपल एंड लर्न। तो वो जो भी कोई कर रहा होता है, वो जो चीज़ उनको अट्रैक्टिव लगती है वो करने लग जाते हैं। चाहे वो जो बच्चे ज़्यादा जल्दी बोलते हैं, दे कॉपी वर्ड्स,
और वो सारी बातें रिपीट कर रहे होते हैं जो कि आप बोल रहे होते हो. सो दिस इज लाइक स्पेक्टेटिव प्ले. ऐसे टाइम पे वन शुड बी वेरी केयरफुल. जो पेरेंट्स जो होते हैं वो मॉडल सेट कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं मुसलसल. दिस इज व्हेन दे डेवलपिंग, और डेवलप करने के बाद अब ये तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं. हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो सीखते हैं. अब अगर वो अपने फादर को देख रहे हैं या अपनी मदर को देख रहे हैं कि मेरी माँ को गुस्सा आया, उसने पकड़ के एक थप्पड़ लगाया है, भाई को गुस्सा आया दरवाजा ठा करके मार के चला गया. दे लर्निंग ऑल दीज थिंग्स. उनको लगेगा कि दिस इज द वे टू डू इट. उनके लिए ये एक नॉर्मल बिहेवियर बनेगा कि व्हेन आई गेट एंग्री आई कैन ईदर स्लैप समबडी, आई कैन ईदर बैंग द डोर, आई कैन स्टॉप माई फीट, और आई कैन जस्ट शाउट. सो दिस इज ऑल लर्न बिहेवियर जो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन द किड्स 2 years of age onwards they are learning by just observation. So this spectator play is setting a time period for learning by observation. ठीक है? इस स्टेज का ये है कि दिस लर्न्स इसमें जो एडल्ट्स के हिसाब से जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम अपनी लाइफ में स्पेक्टेटर प्ले किस तरह से करते हैं. जैसे यू ऑल स्पेक्टेटर प्लेइंग राइट नाउ, ठीक है, दिस इज वन वे. दूसरी ये चीज़ कि हमने भी कोई नई चीज़ करनी होती है तो हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को. अब तो इतना लर्निंग मोड्स इतने चेंज हो गए हैं. वी वुड वॉच यूट्यूब वीडियोस, हम ट्यूटोरियल्स देखते हैं. जैसे पुराने टाइम में इफ आई वर टू लर्न हाउ टू कुक, सो आई वुड सी माई मॉम कुकिंग. ठीक है, जैसे मैं एक ग्रुप में बैठी हुई हूँ. व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज वेरी शाय, सो आई वाज मोस्टली क्वाइट. आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग अदर पीपल कि किस सिचुएशन में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं. एंड लाइक यू नो देयर वर गर्ल्स हु वुड बी वेरी bold and they would step up and say things, and I would always think, yeah, I can never do that. You know, this is the kind of observation and thought process that is always going on in your mind. और इसी को अगर आप एक और स्टेप आगे लेके जाएं, so when you're working in an organization for example, तो जो लीडर है for example you're leading the organization, तो आप कोई काम कर रहे होते हैं या आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो what do? You sit back and you observe कि कहाँ फ्लॉ है, प्रॉब्लम कहाँ पे राइज होगी. सो ऑल दिस एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग एक्चुअली डेवलप्स विद स्पेक्टेटर. इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है एज वी ग्रो अप, बट दिस इज अ वेरी कॉन्क्रीट काइंड ऑफ स्टेज ऑफ प्ले दैट हेल्प्स अस थ्रू आउट. आके अगर उनको टच करते हैं, they accept this कि the other one is also there, we are playing together or some kind of. Parallel play, you partly right on that, but they still do not allow interactions in parallel play. अपना खेल रहे होते हैं, they play side by side. Exactly. Parallel is, as the word suggests, is going along together. Not interacting. Not interacting. So the third stage of play is still the stage where they do not necessarily interact with each other. ठीक है? So they play side by side, just like two parallel lines. वो साथ खेल रहे होते हैं, but they do not interact with each other in that sense, and they do not sort of share the activity together. Parallel play, basically parallel play is important in that sense that it is actually developing this desire in the children to be together with other children. This is actually preparing them. अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरे बच्चों को, देख रहे हैं खेलते हुए, वो खुद भी खेल रहे हैं, and अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं कि हाँ I think it's okay to be together, it's okay to play together. Sometimes it takes longer for some children to take that initiative and join other people playing with them. Sometimes some kids are shy and they take longer. इसी वजह से इसकी जो स्टेज की डेवलपमेंट है that is about 2.5 to 3 years. कुछ बच्चे 2.5 साल की उम्र में बाकी बच्चों के साथ बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, जो बड़ा स्लो मतलब ओपन अप होते हैं, जो जिनको हम कभी कभी ये भी कहते हैं इंट्रोवर्ट्स हैं, या जो बच्चे भी इतना घुलते मिलते नहीं हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं. सो 2.5 to 3 years actually is the age when parallel play is developing. और parallel play में ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि it marks the beginning of the desire to do that with children and it lays the foundation for more complex stages of play जो कि आगे आना है. अब parallel play हम भी हर वक्त कर रहे होते हैं और सब लोग बैठे अगर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, so they are spectator playing and they're also parallel playing. जब आप काम कर रहे हैं लेकिन आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे से, आप एक ऑफिस में everybody has their own desk, everybody is doing their job and they're not interacting with each other. उसमें ये these are all examples of parallel play. बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि हम किसी joint activity में जाते हैं, जैसे पार्क्स में जाते हैं,
बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं, साइड बाई साइड खेल रहे होते हैं, सैंड में खेल रहे होते हैं, इस तरह की जगहों पे, लेकिन वो अपना अपना खेल रहे होते हैं, वो दूसरों के साथ मिलकर नहीं खेल रहे होते, या अभी वो इसलिए रेडी नहीं हुए होते कि वो दूसरों बच्चों के साथ में वो इन्वॉल्व हो सके। पैरेंटल प्ले की इम्पोर्टेंस जो है वो ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द स्टेज जहाँ पे यू कैन डेवलप दैट कनेक्शन विद योर चाइल्ड, and I'm going to talk in detail about it in the coming slide. We move on to the associative play. Associative play is the fourth stage of play. ये ज़्यादा complex stage of play है। इसमें interaction शुरू होता है दूसरे बच्चों के साथ। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, आप अपने जहन में रखिएगा, जब हम पैरेलल प्ले की बात करते हैं, 5 to 3 years की एज में जब हम बात करते हैं, तो अर्ली इंटरवेंशन में बहुत सारे छोटे बच्चे जब डायग्नोस होते हैं और आप उनको लेके आते हैं सेंटर में थेरेपिस्ट के लिए, तो हम उनसे शेयरिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम उनको शेयरिंग सिखा रहे होते हैं, हम उनको टर्न टेकिंग सिखा रहे होते हैं, जबकि डेवलपमेंटली दे आर नॉट रेडी एट दैट स्टेज फॉर दैट एक्ट। और हम कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर्स, बीइंग थेरेपिस्ट के लिए, ये बच्चा टर्न टेकिंग नहीं करा, तो वो तो अभी तैयार ही नहीं है स्टेज के लिए, व्हाई आर यू फोर्सिंग हिम फॉर दैट। सो जो छोटी एज है, इसी वजह से उस एज में प्ले थेरेपी वर्क्स रियली वेल, because उसमें you are not putting those expectations, and when the expectations are not there, the kids are just playing, and that is what they are meant to do. उसमें हम उनको टर्न टेकिंग और शेयरिंग के अंदर जब फंसा देते हैं, तो वो बेचारे खुद भी फ्रस्ट्रेट होते हैं और हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं because we are not getting anything out of it. So that is an important thing to remember at that stage. सोशल प्ले में ये बिल्कुल जैसे मॉन्टेसरी किंडरगार्टन लेवल का प्ले होता है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चे आपस में, जैसे आपने पहले बात की कि दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली अलाउइंग ईच अदर कि अच्छा मुझे ये वाला पेट चाहिए, या कैन आई टेक योर डॉग और एनीथिंग लाइक दैट, तो दे स्टार्ट डूइंग इट। इसी तरह लेकिन ये होता है कि वो खेल अभी भी अपना अपना रहता है, दे आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, दे प्ले बाय द रूल्स, वो गेम्स भी खेलते हैं, वो जैसे स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है उसमें सारे बच्चे स्विंग्स भी खेल होते हैं, दे गेटिंग अलॉन्ग टुगेदर। बेसिकली सोशल प्ले इज प्रिपेयरिंग देम टू गेट अलॉन्ग टुगेदर विद अदर चिल्ड्रन, बट दे आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव स्टेज ऑफ प्ले इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ प्ले। ये आती है बिटवीन 4 to 5 years of age। इस टाइम पे बच्चे जो है वो फीलिंग्स डेवलप करते हैं और वो दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना शुरू होते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन दे विल शो एम्पैथी, दैट इज द टाइम व्हेन दे स्टार्ट सेइंग सॉरी और दे अपोलोजाइज फॉर देयर बिहेवियर, दैट इज द टाइम व्हेन दे स्टार्ट शेयरिंग फ्रीली, दैट इज द टाइम व्हेन दे टेक टर्न्स हैप्पीली। अगर आपका बच्चा 4 साल से कम उम्र का है तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज इस चीज़ के ऊपर ज़ाया मत करें, बिकॉज योर थेरेपिस्ट यू विल कम अक्रॉस मेनी अदर चिल्ड्रन जो कि इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। सो प्ले विद देम for other things, but do not spend your energies if the child is less than 4 years. 4 years से ऊपर है तो then you can slowly start teaching them how to take turns, और उसमें फिर वो empathy develop होना शुरू हो जाती है कि ये दूसरे की feelings hurt हो रही हैं तो चलो मैं ये चीज़ उसको दे देता हूँ। इसी तरह हम एक common goal पे काम करते हैं, जैसे क्लास ये KG2 के बच्चे होते हैं, 1 के बच्चे, वो इकट्ठे मिलकर प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, दे वर्क टुगेदर एज ए टीम। स्पोर्ट्स में आप एक टीम की फॉर्म में हर किसी को पता होता है कि मेरा ये काम है, बट दे स्टिल वर्किंग टुगेदर फॉर द सक्सेस ऑफ द टीम। इसी तरह से हम एडल्ट्स जो है हर वक्त कोऑपरेटिव प्ले कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर में यू एंड योर हस्बैंड आर अ टीम, सो यू आर वर्किंग टुगेदर, योर हस्बैंड हैज़ रोल्स, यू हैव रोल्स, इवन जो आपके बड़े बच्चे होते हैं आप उनको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, सो दैट यू वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल टू हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी पीसफुल हाउस। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में जो बॉस है, जो टीम है, जो आगे एम्प्लॉयज़ हैं, देन ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर द सक्सेस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। सो एज एडल्ट्स जो है ये जब एक दफ़ा हम इस एज में डेवलप कर लेते हैं स्टेज पे, तो देन वी गो ऑन विद द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द स्किल टू बी एबल टू लाइक नेविगेट योरसेल्फ विद अदर पीपल। जिसमें होता है ना, हम कहते हैं कि हम एज अ नेशन बड़े इंटॉलरेंट हैं क्योंकि हमें वो बात ही नहीं बर्दाश्त। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव प्ले का मतलब ही ये है कि कहीं आप थोड़ा सा पीछे हटें, कहीं दूसरा जो है वो थोड़ा सा पीछे हटे, एंड यू टू गेट फाइंड न्यूट्रल बैकग्राउंड फॉर यू टू वर्क इन पीस। जिन घरों में कोई एक पर्सनैलिटी ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है या दोनों पर्सनैलिटी ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है, वहाँ पर मसले इसलिए होते हैं क्योंकि कोई बंदा अपनी स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरह से हायर अथॉरिटीज़ में जहाँ पे दो लोग आपस में
एक इक्वल उसके ऊपर टर्म्स के ऊपर आके जो है वो स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी काम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. So everybody should practice cooperative play so that you can have a progressive household, a progressive company, and then a progressive nation. So this is so important. Next slide, please. Is everybody with me so far? If there is any confusion, please. Okay. अब हम बात करते हैं ऑटिज्म लैंड. ये हमारी दुनिया है जिसमें हमारे बच्चे. ऑटिज्म लैंड में we have two stages. Either our children are less connected or they are more connected. ठीक है? जो less connected stages of play हैं उसमें solitary play, spectator play और parallel play. और जो more connected stages हैं उसमें associative play और cooperative play. So next time when you go and you work with your child, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो एडल्ट, you have to see कि उस वक्त वो किस स्टेज ऑफ प्ले में फॉल. जिस तरह हम सारा दिन स्टेजेस ऑफ प्ले से गुजर रहे होते हैं, किसी वक्त हमारा दिल करता है कि बिल्कुल अकेले होकर बैठ जाएं, किसी वक्त हमारा दिल करता है कि लेट्स गो आउट हैव फन टुगेदर, किसी वक्त हम अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे होते हैं. वी गो थ्रू ऑल दो स्टेजेस. इस तरह हमारे बच्चे भी सारा दिन इन स्टेजेस से गुजर रहे हैं, किसी एक स्टेज में फिक्स नहीं होते. लेकिन ऑटिज्म में बच्चे ज़्यादातर लेस कनेक्टेड स्टेज ऑफ प्ले में इसलिए होते हैं क्योंकि मुश्किल होता है उनको अंडरस्टैंड करना, उनके लिए मुश्किल होता है कम्युनिकेट करना. तो वजह उसके बाद नतीजा क्या होता है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन, देयर इज लॉट ऑफ ओवरवेलमिंग, और उनका जो फियर फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म है इट टेक्स ओवर एंड दे गो टुवर्ड्स सॉलिट्यूड. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, अब जो लेस कनेक्टेड स्टेज है इसमें हमारे बच्चे क्या करते हैं? डिस्टिक, उसमें वो अपना रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहे होते हैं. और उसके बाद हम क्या करते हैं? जब भी हम अपने बच्चे को देखते हैं कि बच्चा किसी रिपीटेटिव एक्टिविटी में बिजी है, तो व्हाट डू वी डू? Distract them, redirect them. So basically you stop them. ठीक है ना, वन वे और दी अदर. जो काम वो कर रहे होते हैं आप उनको उससे स्टॉप करते हैं. आपको लगता है कि ये बुरा काम है जो वो कर रहे हैं और ये एक गलत काम है, एक सोशली इनअप्रोप्रिएट काम है, इसलिए मुझे इसको रोकना है. सो दैट इज व्हाट यू डू. ठीक है, यू गेट देयर अटेंशन, उनके आगे आ जाते हैं. जो वो कर रहे होते हैं उसमें अपना कोई ना कोई मकसद डाल देते हैं ताकि जो वो कर रहे हैं उसकी अटेंशन, वहाँ से उनकी अटेंशन हट के हमारे पे अटेंशन आ जाए. उसके बाद हम फोर्स करते हैं कि वो अपना काम छोड़ दें और जो हम कह रहे हैं वो करें. राइट, और इसी तरह स्टॉप और रीडायरेक्शन वाला होता है. नेक्स्ट स्लाइड. अब जब हम ये करते हैं, जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. जब हम ये करते हैं तो होता क्या है? हमने एक छोटा सा इस पे वो किया था, एक सिनेरियो अपने जहन में रखा था कि आप सारे दिन के थकने के बाद आप बुक पढ़ती हैं और आपकी बुक आपको बचा के फेंक देता है. हाउ वुड यू फील? छोड़ दो तो नुकसान हो रहा है ना. वो यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली डू समथिंग दैट ब्रिंग्स यू a sort of regulation and contentment, something that is going to help you keep your mental sanity. इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं थकी हूँ, अब मुझे होता है कि मैं कभी बहुत लास्ट होती हूँ या बहुत परेशान होती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं फ़ोन पे किसी फ्रेंड से बात करूँ. और जैसे ही फ़ोन पकड़ूँ उसी वक्त बच्चों को हर तरह के काम और ज़रूरतें याद आ जाती हैं. एंड आई गेट सो एंग्री कि अभी मैं इधर बैठी हुई थी, यू कुड नॉट आस्क मी दैट. So the minute I get on the phone, you remember everything that you have to ask. So you feel very bad about it. क्योंकि ये तो बड़ी सटल सी चीज़ है और हमारे ऊपर है क्योंकि हम न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन जब वो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से ओवरवेल्म हो गए, ओवर स्टिमुलेट हो गए, व्हेन ही फाइंड्स पीस इन हिज सेल्फ स्टिमुलेटेड बिहेवियर, और हम उसको जा के बोलते हैं, हम उसको जा के पीछे करते हैं, तो उसके बाद वो बच्चा जो है उसके फ्रस्ट्रेशन का लेवल कभी इमेजिन किया आपने? वो क्या करेगा? या तो
वो बिहेवियर शो करेगा, एग्जैक्टली दैट इज द वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी, ही विल शो बिहेवियर। हाउ ही विल शो बिहेवियर, हो सकता है वो आपको हिट कर दे, हो सकता है जो चीज़ पड़ी उसको उठा के फेंक दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो जगह से ही चला जाए जहाँ पे आप, तो हमें भी ये गिल्ट रहेगा कि यार ये मैंने क्या किया, मतलब अच्छा भला चलो वो कुछ भी था लेकिन हिटिंग तो नहीं हो रही थी, वो वहाँ से जा तो नहीं रहा था। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। इसके बरक्स हमें करना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए कि वी शुड डू स्पेक्टेटर प्ले ऑन आवर चिल्ड्रन। हमें उनको देखना चाहिए कि जो वो रिपेटिटिव बिहेवियर उस वक्त कर रहे हैं या कोई भी बिहेवियर, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा हिट भी कर रहा है, अगर फर्स्ट करें कि बच्चा जो है वो शोर मचा रहा है, तो वी हैव टू डू द स्पेक्टेटर प्ले ऑन द चाइल्ड टू सी इसके बिहेवियर की पीछे वजह क्या है, व्हाट इनपुट इज द चाइल्ड गेटिंग फ्रॉम दैट बिहेवियर। अगर फर्स्ट करें कि वो बच्चा जंपिंग कर रहा है तो प्रॉब्ली ही नीड्स सम प्रेशर ऑन द जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स पे। अगर वो बच्चा पेस कर रहा है बैक एंड फोर्थ तो प्रॉब्लम उसको कोई प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट चाहिए। अगर फर्स्ट करें कि वो बच्चा हिट कर रहा है तो आप एक मिनट जस्ट स्टेप बैक, गेट इनटू अ सेफर जोन और देखें कि वो कुछ कम्युनिकेट तो नहीं करना चाह रहा आपसे, वो कोई बात तो नहीं ऐसी जो वो आपको बताना चाह रहा है और आपको समझ नहीं आ रही जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, या ऐसी कोई चीज़ की कोई उसको तंग तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो अपसेट होकर अपनी एनर्जी वहाँ पे निकाल रहा है। उसका स्कूल में दिन कैसा गुजरा था, क्या आपने उसके थेरेपिस्ट से पूछा कि इस सेशन में कैसा था कि वो बहुत परेशान हो रहा था, एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही थी। यू हैव टू लुक एट दैट बिहेवियर। अब जैसे बच्चे प्यूबर्टी में आते हैं, दे स्टार्ट टचिंग देमसेल्व्स, हैव यू एवर नोटिस्ड कि व्हाई दे आर टचिंग देमसेल्व्स? उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई हेयर ग्रोथ की वजह से वो अपसेट हो रहा है, कोई जस्ट की जेन्युइन बेसिक नीड है जिसकी वजह से वो अपने आप को टच कर रहा है। और हम इन सारी चीज़ों को देखने के बजाय, पता करने के बजाय, व्हाट वी डू, वी होल्ड देयर हैंड्स, we stop them, we just yell at them, we are being angry at them कि मत करो, चीखना मत करो, क्या मुसीबत है, all those things। इससे क्या हो रहा है? We're not helping them, we're just adding to that anxiety, we're just escalating everything which is going on। तो इसमें आपने जब ये देखना है कि आप उसके बिहेवियर की रीज़न आपने देखी, once you find out the reason कि बच्चा जो बिहेवियर शो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, आपने आगे क्या करना है, नेक्स्ट थिंग, two things, parallel play, solitary play, क्योंकि these are less connected stages of play, these are the stages of play जहाँ पे आपकी कोई expectation नहीं है कि आप interact करें, ठीक है। so these are the stages जहाँ पे आप pressure बिल्कुल diffuse करते हैं, अपने ऊपर से भी बच्चे के ऊपर से। आपका बच्चा घर में है फॉर एग्जाम्पल, आप बीइंग टीचर्स आपको के लिए थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाता है व्हेन यू हैव मोर चिल्ड्रन विद यू, लेकिन इफ यू वर्किंग वन ऑन वन विद योर चाइल्ड सो यू कैन डू दैट। आप आराम से अपसाइड बेड, यू कैन डू सॉलिटरी प्ले, यू कैन प्ले बाय योरसेल्फ। अब सॉलिटरी प्ले जब आप कर रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कन्वे टू योर चाइल्ड कि इट्स ओके टू प्ले अलोन, इट्स ओके टू बी बाय योरसेल्फ and I respect your need to be alone at this time। उसमें आप वो काम करें जिससे आपको सुकून मिलता है, ठीक है। प्रॉब्लम आपका बच्चा गुस्से में है या परेशान हो रहा है या अपसेट हो रहा है तो आप कोई बुक लेके बैठ जाए साइड पर, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर दें जो कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्यूचर में करे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई अपने चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ पेंटिंग करे तो आप पेंट्स लेके बैठ जाएँ, ड्राइंग करें, पेंटिंग करें एंड फाइंड एंजॉयमेंट इन दैट। आपकी जो एंजॉयमेंट और आपका जो पीस है दैट विल बी पिक्ड अप बाय योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड विल हिमसेल्फ कम टू, ठीक है। स्पेशली विद ओल्डर चिल्ड्रन, मैं बच्चों की, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही क्योंकि उनके अभी इतने इमोशंस डेवलप नहीं हुए होते, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं दे विल देमसेल्व्स कम टू यू, दे विल शो इंटरेस्ट इन योर एक्ट, दे विल डू स्पेक्टेटर प्ले ऑन यू। वो देखेंगे कि हमारा पेरेंट है ये हमें तंग करने के बजाय खुद क्या कर रहा है। So you see that once you take off that pressure of expectation from the child, once you take off that pressure of stopping the child, बच्चा खुद ही डिफ्यूज हो जाता है, खुद ही आपके पास आता है। हो सकता है वो आपके पेट्स को उठा के देखे, हो सकता है वो अपनी उंगली से पेट्स को डिप करे, हो सकता है वो पेंसिल पकड़ के कुछ ड्रॉ भी करना शुरू कर दे, या ये भी हो सकता है कि वो आपके पास आके बैठ जाए। So you see all these things are initiated by your child. You are not asking him to do any of this. और जब बच्चा मूवमेंट खुद इनिशिएट करता है तो वो ज़्यादा सस्टेन्ड होती है, और इनिशिएटिव इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग फॉर किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम क्योंकि वो इनिशिएट नहीं करते।
और इनिशिएट इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत प्रेशर फील करते रहते हैं अपने आप को, उनको लगता है कि हर कोई हमसे इतना एक्सपेक्ट करता है हर वक्त, हो सकता है वी माइट नॉट बी एबल टू डिलीवर। सो उस एक्सपेक्टेशन में, उस फियर में ही वो इनिशिएट नहीं करते। सो वंस दे आर अपसेट एंड दे आर बिजी विद देयर सॉलिटरी प्ले, यू सिट देयर एंड यू डू योर ओन सॉलिटरी। लेकिन बच्चे की तरफ बैक करके नहीं बैठे, ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आप बच्चे के विजुअल रेंज में हो, जहाँ बच्चा आपको इजीली देख सके, ठीक है। उसको मेहनत ना करनी पड़े कि वो पीछे मुड़े और जाके आपको देखे, ठीक है। और इतना डिस्टेंस ज़रूर रखें अपने और बच्चे के दरमियान कि आपसे स्पेस मेंटेन ना हो। द चाइल्ड शुड बी फेल्ट रिस्पेक्टफुल। वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड ऑफ रिस्पेक्टफुल अगैन एंड अगैन इज बिकॉज हमारे जो बड़े बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, या जो ट्वीनिंग उस एज में जा रहे हैं, उनकी नीड्स ऑफ बीइंग अलोन उसी तरह से होती है जैसे कि न्यूरोटिपिकल टीनेजर्स की होती है जब वो ग्रो करते हैं। तो इस वजह से इस डिस्टेंस को ज़रूर मेंटेन रखें, और इस डिस्टेंस को जब आप मेंटेन रखते हैं तो आप एक और चीज़ भी इनको मॉडल कर रहे होते हैं, पर्सनल स्पेस, ठीक है। आप उनकी पर्सनल स्पेस पर रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आपकी पर्सनल स्पेस को भी रिस्पेक्ट करेंगे। So this is all that you're translating with your actions. You're not doing anything, you're not saying anything, and you're not asking them to do anything. That is how much solitary play is important. आपको भी एक एक्टिविटी करके जो है वो अपना भी जहन जो है स्ट्रीमलाइन होगा, थोड़ा you will feel better, you will give yourself some time, you will be in a better state to work with your child. लेकिन अगर आप फ्लस्टर्ड हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप ओवरवेल्ड हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ भी काम नहीं कर सकते। यू विल बी सो एंशियस, और आपकी एंग्जाइटी को आपका बच्चा टेक करेगा और वो और स्टिमिंग करेगा। तो जैसे जैसे आप कभी इसको आजमा के देखें, बी ए कीन ऑब्जर्वर, खुद चेक करें कि जब आप पैनिक में हो आपके बच्चे की स्टिमिंग कितनी ऊपर है। यू शुड डू दिस एट होम एंड सी, इवन यू शुड डू दिस विद योर चिल्ड्रन, कि जब आप एक एक्सपेक्टेशन का माइंडसेट लेके बच्चे के साथ काम करते हैं, बच्चा कितनी जल्दी शट डाउन। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। दूसरा जो है दैट इज पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले इज दैट यू प्ले विद देम। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप एग्जैक्टली जो एक्टिविटी आपका बच्चा कर रहा है आप वो करो। अगर बच्चा गाड़ियों से खेल रहा है आप गाड़ियों से, अगर बच्चा जो है वो बैठ के स्ट्रगल कर रहा है आप बैठ के स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी का पहिया लेके सिर्फ उसको घुमा रहा है आप। ये बेसिकली ये सब बिहेवियर्स ये शो करते हैं कि आपके बच्चे को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आई एम ओके विद व्हाट यू आर डूइंग, आई एक्सेप्ट यू, I accept your need to do this and I understand. बड़ा बच्चा ये है तो उसमें you do not need to do exactly the same thing जो कि आपका बच्चा है, ठीक है। उसमें आप उससे मिलती जुलती कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों को देख के बाद दफ़ा बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेल रहे होते हैं तो हर बच्चा खेल तो ब्लॉक्स से रहा होता है लेकिन वो डिफरेंट तरह से खेल रहा होता है। कोई बच्चे ब्लॉक्स के टावर्स बना रहे होते हैं, कोई बच्चे उनको लाइन अप कर रहे होते हैं, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कलर्स में सेग्रीगेट करके रखते हैं। You find your own way to play with blocks. You don't have to play exactly the same way like children. लेकिन सिर्फ सॉलिटरी और पैरेलल प्ले का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रिड्यूस कर देते हैं, प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। बच्चे जो है उनको ये मैसेज आता है कि यार अच्छा ओके, इज़ नॉट ट्राइंग टू गेट मी ऑफ माई रेगुलेशन, इज़ नॉट ट्राइंग टू जस्ट टेक दिस अवे फ्रॉम मी। आप उनके लिए स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि जब वो रेडी हो तो वो आपके पास आए, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप उनको ये मॉडल भी करते हैं कि मैं भी जब थक जाता हूँ यार तो मैं भी ऐसे करता हूँ। ये वर्ड्स उनके साथ बोला करें, रिपीटेडली बोला करें, ताकि बच्चों को ये उनके एक तरह से फीलिंग्स में पता हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरी नीड है, माई बॉडी इज टायर्ड, आई वॉन्ट इट टू बी रेगुलेटेड, सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग। आप अपने बच्चे के साथ जब काम करें तो उनको बताएं कि आप थक गए हो, मुझे पता है, यू नीड दिस टाइम अलोन, आप करो, दैट्स फाइन। इसी तरह से जब आप थक गए होंगे, आप कुछ काम करेंगे और आप अपने बच्चे को बताएंगे यार मैं थक गई हूँ, आई नीड दिस टाइम फॉर माई सेल्फ, आपका बच्चा भी आपको स्पेस दे। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड दिस हैपन्स सो नेचुरल अगर आप करेंगे। क्योंकि होता ये कि हम ऑटिज्म वाले जो पेरेंट्स होते हैं हम इतने ज़्यादा अपने आप को टेक्निक्स में और उन चीज़ों में बिजी कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि जो नेचुरल चीज़ें हम एज पेरेंट्स अपने बाकी बच्चों के साथ करते हैं वो हम इनके साथ करते ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। So what we get, as I just mentioned, we get emotional trust with our children. Our children start trusting us. उनको पता है कि मेरा पेरेंट जो है या मेरे टीचर जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे टाइम के करते हैं।
So that develops an emotional trust. Then you step into their world. जब आप उनके साथ मिल के उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके उनके साथ अपने आप को ऐड करते हैं, तो यू स्टेप इनटू देयर वर्ल्ड, यू स्टार्ट फीलिंग देयर नीड्स एंड यू स्टार्ट गेटिंग देयर नीड्स. ठीक है, उसके बाद यू बिकम द एम्बेसडर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट यू वांट देम टू कम टू. उनको तो ये लगता है कि सारी दुनिया ऐसी है कि जो काम जिसमें मुझे सुकून मिलता है मुझे छीन लेती है. So you are the one who is modeling flexibility, who is modeling कि नहीं, I am here to help you, I am here to accept you, I am here to love you, and that you are very important to me. You become the brand ambassador. तो जो आप करेंगे वो उसके लिए ज़्यादा important होगा than all the other people who do. ठीक, उसके बाद we model flexibility and non-judgmental attitude जैसे मैंने इसको बताया. Next slide. So what we get? Connection. See? It is so easy to get that once you understand the stages of play. Once you're aware कि आपका बच्चा इस वक्त किस स्टेज में है और आप उस स्टेज को रिस्पॉन्ड कैसे करें. अगर आपका बच्चा लेस कनेक्टेड में है और आप उसको एसोसिएटिव कोऑपरेटिव वे में लेके जाना चाह रहे हैं, तो इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. इट्स नॉट गोइंग टू. अगर आपका बच्चा लेस कनेक्टेड है तो यू डिस्कनेक्ट. So you disconnect to connect. I think I used this in my previous workshop as well because I just love this so much. There is so much depth in this statement that you disconnect to connect. हम कहते हैं ना कि इसको थोड़ा सा just give it a break. तो ऐसा time break. Time is the biggest healer. ये हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़े बड़े लेवल्स पे, लेकिन ये छोटे छोटे लेवल्स पे भी ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा बच्चे को स्पेस देते हैं, बच्चा उसी वक्त डिफ्यूज होता है. So try to be part of the solution with that child instead of escalating his problems. And you can do it like this. Just see where he is at and be with him at that stage. Next slide. So once they are connected and we get emotional trust from them, we create enough space for them, they are ready to come to us and we expand. ठीक है, जब वो खुद आएंगे हम उनके साथ जो भी एक्टिविटी करेंगे हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ज़्यादा लंबे उस टाइम के लिए कर सकेंगे, ज़्यादा लंबी देर के लिए इंटरैक्टिव अटेंशन को हम सस्टेन रख सकेंगे. ठीक है, दे कम टू एक्सप्लोर आवर वर्ल्ड एंड प्ले विद अस एंड एंजॉय. हम उनकी दुनिया में जाएंगे का हाथ पकड़ेंगे और उनको लेके आएंगे अपनी दुनिया. और जिस दुनिया में हम लाना चाहते हैं हमें उनको बताना है कि ये दुनिया के लिए बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी खूबसूरत है, इट इज़ वर्थ टू एक्सप्लोर, इट इज़ एंड इट इज़ ओके एंड इट इज़ सेफ टू कम. नेक्स्ट. सो व्हेन यू आर सिंगिंग टू, अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो इतनी प्यारी वीडियो, दिस इज़ माई सन. So this is when we were actually getting into those associative stages and cooperative. Like इसका वीडियो कर लेंगे. I forgot to connect and my husband is not here so I cannot play that video. लेकिन so हम इस तरह से करते हैं कि we incorporate our goals into our play and we just do. ठीक है? आगे next slide. So these are the things that you have to remember, that you have to accept your child with love and grace. उसके ऊपर hard times भी आएंगे, उसके ऊपर अच्छे times भी आएंगे, मुश्किल वक्त में you have to show grace. और जब वो आपके साथ connected है, you have to love. Connected है नहीं connected है, you have to tell them that you're there. You have to believe that they're taking you all in. जब भी आप कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे हमने previous workshop में discuss किया था, कि जब brain body disconnect होता है, बच्चा it is taking it all in, but it just cannot take it out. So you have to believe that जो भी उसको सिखा रहे हैं, जो भी उसके साथ कर रहे हैं, जो भी वो observe कर रहे हैं, is taking it all in. You are the one who are going to presume competence in your child and in yourself. मैं ये कर सकती हूँ, मेरा बच्चा ये कर सकता है. So you have to model that competence, that self-esteem in yourself, and you will be translating that in your energies to your child. Do not try to fix that. आपका बच्चा खराब है, आपका बच्चा को मेंटली उसको कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं, आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है. डू नॉट ट्राई टू फिक्स दैट. अपने ऊपर भी नहीं प्रेशर रखना, बच्चे के ऊपर प्रेशर भी नहीं करना.
and don'ts of play, this is just a recap of what we've learned so far. That you have to believe in your child, get him his emotional trust, presume competence in him, and create space for him to learn. Okay? And what you do not have to do not judge your child by what he do. आपका बच्चा और उसका behavior ये दो different चीजें. Do not mix them. Okay? Do not try to fix them. Do not fill up all the place. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो बच्चा स्टेमिंग करवा रहा बस हर तरह का एक्टिविटी और हर तरह की चीज़ें लेके वहाँ घुस जाए. Do not fill that space. Rather create space for them. And do not force them and never ever think less of them. So this is my message for today. Please play together, learn together, and grow together with your children. मेरी इंस्पिरेशंस इन दो प्रोग्राम्स में हैं. दिस इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड आवर लाइव्स इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन एंड बॉन्डिंग. इसमें नेचुरल प्ले थेरेपी है और सनराइज प्ले थेरेपी. Thank you very much all of you for being here and for all of you who are on Zoom. So if you have any questions,